गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी जो हम क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये इसमें COO ग्रुप है तो एस्टर है, तो नेमिंग में ये एल्काइल एल्केनोएट, तो ये 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है इथाइल, और ये 1 2 3 4 और ब्यूट और सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2-ene-OH, तो इथाइल ब्यूट 2-ene-OH, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। IUPAC name of this compound will be 1,2,3 prop-2-ene nitrile or 2-propene nitrile. The most stable conformation of normal butane is staggered or anti. Which process is suitable for purification of aniline? Answer is steam distillation. Anthracene is purified by sublimation. Which of the following compounds does not give Lesson's test for nitrogen? Answer is hydrazine. In order that a compound gives Lesson's test, carbon has to be there, which is not there in hydrazine. In Jayal-Dahl method, the presence of nitrogen is estimated as ammonia. Molecular mass of volatile substance may be determined by Victor-Meyer's method. Which of the following carbocations is least stables? This is tertiary carbocation. ये कॉन्जुगेशन हो रही है, यहाँ भी हो रही है, तो ये विनाइल कार्बोकेटाइन विल बी लीस्ट स्टेबल. मोस्ट स्टेबल आयन इज कार्बोकेटाइन्स में प्राइमरी टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो दिस अ फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड्स इज CHO. The functional group belongs to the family of ethers. The word oct is for C8. Steam distillation is applied for separation of those compounds which are steam volatile and insoluble in water. The process of differential extraction is based on different solubilities. The substance which decomposes below its boiling point can be best purified by distillation under reduced pressure. In Dumas method, the gas which is collected in nitrometer is nitrogen. The first organic compound prepared is urea. General formula CnH2n+1OH is of alcohol. Which of the following compound will give blood red color while doing Lesson's test for nitrogen? One which has nitrogen as well as sulfur, so option B. The violet color in the Lesson's test of sulfur is due to the presence of Na4FeCN5NOS. Next category is definitions. So first is homologous series. The homologous series is a series of similarly constituted compounds in which the two successive members differ in their molecular formula by CH2 group. The members have the same functional group and similarity in chemical properties and show
gradual gradation in physical properties. For example, alcohols is a homologous series. पहला मेंबर अगर CH3OH है तो सेकेंड मेंबर में CH2 और ऐड कर देंगे तो C2H5OH हो जाएगा. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में धीरे धीरे फर्क आएगा. फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप में भी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which is responsible for the characteristic chemical properties of organic compound. For example, alcohols में functional group OH होगा. Sublimation is a process of conversion of solid directly into gaseous state without changing to liquid state. Crystallization, it is the most commonly used method for purification of organic solid. Method is based on the difference in solubility of organic compound and impurities present in the compound. जैसे अगर हमें कॉपर सल्फेट के प्योरीफाई करना है तो हम कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, ये डिज़ोल्व कर जाएगा, इम्प्योरिटीज़ नहीं करेंगी. फिल्टर कर लेंगे, फिर गर्म करके इसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर इसको कूल करने रखेंगे तो कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाएंगे और इस तरीके से हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं. डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज. द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर शुड डिफर इन द बॉइलिंग पॉइंट. तो जो नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं वो कंटेनर में नीचे रह जाती हैं, जबकि वोलाटाइल लिक्विड जो है वो वेपर के फॉर्म में आ जाता है, जिसको कंडेंस करके हम एक सेपरेट कंटेनर में प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं. इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं. कुछ और प्योरीफिकेशन की टेक्निक्स हैं, साथ ही साथ और डेफिनेशंस जो पूछी जा सकती हैं वो हैं व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म. So compounds having the same molecular formula but different structural formula or different physical and chemical properties are called isomers, and the phenomena is called isomerism. Isomerism can be divided into two categories, structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism जब isomers में difference उनके structure के बेसिस पे होता है तो इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है, और अगर स्पेस में ग्रुप्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस है तो उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं. इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं. पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं, ल्यूइस एसिड होती हैं और नेगेटिव चार्ज सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं. और इसी तरह न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड और मे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड may be Lewis base in nature, and they are attracted towards positive charge of another molecule. Free radical, atom or groups of atoms having an unpaired electron are called free radicals. किसी भी बॉन्ड की होमोलिटिक जब फिशन होती है, बॉन्ड दो बराबर हिस्सों में बंटता है, तब फ्री रेडिकल्स बनते हैं. अगर हेट्रोलिटिक फिशन किसी बॉन्ड की हो, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले गए हैं, तब जो दो स्पीशीज़ बनती हैं वो हैं कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन. कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन एटम के बीच में, तो डेफिनेशन हो जाएगी अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम with 6 electrons, and carbon ion will be a group of atoms having negatively charged carbon atom having complete octet of electron. कार्बीन को डिफाइन करना हो, ये भी एक इंटरमीडिएट है, तो कार्बीन इज न्यूट्रल स्पीशीज इन विच कार्बन एटम हैज 6 electrons in the valence shell. It is represented as C with 2 electrons and 2 bond pairs, in all 6 electrons. Then some other definitions. Chromatography, the process of separating the components of a mixture by differential movement of individual components through a stationary phase under the influence of moving phase is called chromatography. For example, ये सिलिका जेल का एक कॉलम में हमने एक मिक्सचर जिसकी कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है वो डाल दिया, तो वो अलग अलग लेवल तक एड्जॉर्ब हो जाते हैं. फिर ऊपर से हम एक सूटेबल सॉल्वेंट डालते हैं जो
जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको डिफरेंट रेट से नीचे को मूव कराता है, और इस तरह से विद टाइम जो है कंपोनेंट मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं उनको सेपरेट करते जाते हैं। तो इसमें जो कॉलम है उसको स्टेशनरी फेज कहते हैं, और जो सॉल्वेंट है उसको मूविंग फेज कहते हैं। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो अगर एक मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा ही फ़र्क है तो उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए ये असेंबली होती है, जिसमें हम हीट करने पर जो कंपोनेंट्स हैं, जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, वो इवेपोरेट करते हैं, उनको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा के धीरे धीरे कूल किया जाता है, और ओवर द टाइम जैसे जैसे वो वेपर फेज और कूलिंग के प्रोसेस में ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट ऊपर जाता है, कम वोलेटाइल कंपोनेंट लिक्विफाई होकर नीचे गिर जाता है, एंड इवेंचुअली ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट को हम अलग अलग कर लेते हैं। सो डेफिनेशन हो जाएगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट a mixture of two or more miscible liquids which have boiling points close to one another. डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर में है तो उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसको पहले हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ शेक करते हैं, फिर ये सेपरेटिंग फनल में स्टैंड करने के लिए रख देते हैं। 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है लिक्विड, ऑर्गेनिक लेयर लाइटर होने की वजह से ऊपर आती है और हमारा कंपाउंड भी उसमें डिज़ोल्व होता है। एक्वस लेयर एक सेपरेट लेयर बना लेती है, और प्रोसेस को बार बार रिपीट करके अल्टीमेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड सारा का सारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ले लिया जाता है, और फिर बाद में उसको इवेपोरेट करके सॉल्वेंट अलग कर लिया जाता है, कंपोनेंट अलग। सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल extraction. In this method, organic compound is extracted from aqueous medium. It is separated by shaking it with an organic solvent. Organic compound is more soluble in organic solvent than in water. The organic solvent and aqueous solution should be immiscible so that it can form 2 distinct layers. Then RF value is called retention factor, which is used to express relative adsorption of each component of the मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट जितना डिस्टेंस मूव करता है वो y, और उसका कंपोनेंट जो है मिक्सचर का जितना डिस्टेंस मूव करता है x, तो x अपॉन y विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रिटेंशन फैक्टर। हाउ विल यू डिटेक्ट द presence of nitrogen in organic compound and write equations only. So to detect the presence of nitrogen in organic compound, we perform Lassane's test. तो chemistry of Lassane's test is कि हम पहले एक फ्यूजन ट्यूब में ड्राई सोडियम लेते हैं और उसको इतना हीट करते हैं कि वो शाइनिंग ग्लोब्यूल बन जाए। फिर उसको उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हम डाल देंगे और फर्दर हीट करेंगे इतना कि वो रेड हॉट हो जाए। फिर उसको एक चाइना डिश जिसमें 10 to 15 ml वाटर लिया उसमें प्लंज कर देंगे सो दैट कंपोनेंट्स इसमें आ जाएं, और हीट करते हैं ताकि उसकी एक्वस लेयर में सारा कंपोनेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। ये जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है फिल्टर करने पर, इसको हम लेसेन्स एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस केमिस्ट्री ये होती है कि सोडियम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन और नाइट्रोजन कंबाइन करके सोडियम साइनाइड बना लेता है। ये लेसेन्स एक्सट्रैक्ट में होगा। अब इस लेसेन्स एक्सट्रैक्ट में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन डाल के फेरस साइनाइड बनाएंगे, और ये फेरस साइनाइड इस सोडियम लेसेन्स एक्सट्रैक्ट के सोडियम साइनाइड से कंबाइन करके सोडियम फेरोसाइनाइड बनाएगा, जिसमें फेरिक क्लोराइड डालने पर फेरिक फेरोसाइनाइड की ब्लू या ग्रीन कलरेशन आती है। अगर ये कलरेशन आती है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और इस तरह से नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। देन एक क्वेश्चन आता है, राइट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा, उसका हम IUPAC नेम लिखने के लिए हम गिवन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे इस कंपाउंड में आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन देखते हैं 3 कार्बन एटम्स की,
जिसमें एक साइड से हमने नंबरिंग कर दी, तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगी प्रो, और ये 2 पोजीशंस पे ओल आ रहा है, तो प्रोपेन 1,3 डाइओल विल बी द नेम। प्रोपेन 1,3 डाई फॉर 2 एंड ओल फॉर OH ग्रुप। सिमिलरली इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन है 4 कार्बन एटम्स की, यहाँ से नंबरिंग की तो 2 और 3 में 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट फॉर 4 कार्बन, ब्यूटेन नल। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल will be the name of the organic compound। इस तरह से नेमिंग की प्रैक्टिस आप करेंगे। देन समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको नाम दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखें। इफ़ द क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पेंट 1ene3 तो उस केस में हम, क्योंकि वर्ड रूट 5 कार्बन की है, तो हमने 5 कार्बन एक चेन में लगा लिए। देन उसकी नंबरिंग कर दी और फिर 1 पे डबल बॉन्ड डाल दिया, क्योंकि 1 पे ईन है और 3 पे आइन है, तो ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया और बाकी की वैलेंसी हमने हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी। और इस तरह से हमारा कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपको। देन नेक्स्ट इज नेम द मेथड which can be used to separate 2 compounds with different solubility in a solvent. So this method will be fractional crystallization. Then what is the principle of paper chromatography? So principle of paper chromatography: analysis of unknown substances by the flow of solvent on a filter paper is paper chromatography. It works on the principle of partly partition and partly adsorption. ये हमने फिल्टर पेपर में एक लाइन ड्रॉ करके उस पे हमने मिक्सचर की ड्रॉप डाली है, जिसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। तो ये जो मिक्सचर है पार्टली पार्टीशन हो जाएगा इसके कंपोनेंट्स और पार्टली एड्जॉर्ब हो जाएंगे ऑन द पेपर। फिर इसको हम एक सॉल्वेंट में डिप कर देंगे, सॉल्वेंट इसको फर्दर जो है मूव करा के एक दूसरे से सेपरेट करा देगा। सो वाटर ट्रैप्ड इन द क्रोमेटोग्राफिक पेपर विल एक्ट एज द stationary phase and the organic solvent on which the paper is dipped will act as the mobile phase. Then give the structure of carbocation. So the central positively charged carbon atom in a carbocation is sp2 hybridized. तो ये 3 sp2 hybrid orbitals बनाता है जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है अबव एंड बिलो द प्लेन जो कि एंड है। तो इस तरह से शेप हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बनाइन, तो कार्बन एटम इन कार्बनाइन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और चौथे में जो है नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर एग्जिस्ट करते हैं और इसका ज्योमेट्री आती है पिरामिडल। देन अगर फ्री रेडिकल की आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए तो इसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एन एल्केन हैज मॉलिक्यूलर मास 72 AMU। राइट इट्स पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद देयर IUPAC नेम। तो 72 AMU से पहले तो हम पता लगाएंगे कि इस कंपाउंड में कार्बन एटम कितने हैं। तो क्योंकि एल्केन है और उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है,
तो इनका मोलर मास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला शुड बी 72 का एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है. अगर n कार्बन एटम्स हैं तो 12 इंटू n प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो एटॉमिक मास विल बी 2n प्लस 2 और इस टोटल सम टोटल शुड बी 72. यहाँ से n की वैल्यू हमने 5 निकाल ली. सो दैट मीन्स हमारा एल्केन 5 कार्बन एटम्स का है. तो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने के लिए पहले हम स्ट्रेट चेन, फिर ब्रांचिंग में एक मिथाइल ग्रुप लगाया, फिर ये 2 मिथाइल ग्रुप्स 3 की चेन में लगा दिए. इनके IUPAC नेम हो जाएंगे पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. Then next question is give difference between resonance and tautomerism. So different resonating structures differ in arrangement of electrons whereas the atoms remain in the same arrangement. But in tautomerism is a special type of functional isomerism in which the isomer differ in arrangement of atoms and tautomers will exist in dynamic equilibrium with each other. For example, acetaldehyde में ये स्ट्रक्चर होता है, जबकि जब इसका टॉटोमर ये अपने टॉटोमर में चेंज होगा तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और यहाँ का H इधर चला जाएगा और इस तरह से इनोल बन जाएगा. तो ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं. और रेजोनेंस में बेंजीन के ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. एक्चुअल स्ट्रक्चर इनके बीच का रेजोनेंस हाइब्रिड है. देन आपको कुछ इफ़ेक्ट्स पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं. तो द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट द एंड ऑफ कार्बन चेन. मान लीजिए कि अगर हमारी कार्बन चेन में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. अब बिकॉज दिस कार्बन इज़ डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर को चली जाती है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है विच इज़ लेस दैन दिस कार्बन एटम. दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव effect. The displacement of electrons along a carbon chain due to presence of either electron withdrawing or releasing group. तो accordingly inductive effect plus I effect और minus I effect 2 तरह के होते हैं. इसी तरह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जब किसी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, तो इस ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड एटम विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इट इज अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज द interaction between electrons of a pi system जैसे यहाँ पे and adjacent sigma bond. अब इस मॉलिक्यूल में ये पाई के इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आके कॉन्जुगेशन में एंटर कर जाएंगे. इस प्रोसेस को हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर-नाथन इफेक्ट कहा जाता है. रेजोनेंस इफेक्ट involves displacement of pi electrons towards or from conjugated system due to effect of a substituent. For example, अगर यहाँ OH ग्रुप लगा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर माइग्रेट करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर माइग्रेट हो जाते हैं और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe, and thank you and have a nice day.